A very warm good afternoon to one and all. This is Ed Chirdia on the behalf of Trainer Wings. Once again, we would like to welcome in our session today's, which is known as SPC. That stands for a statistical control. Since last many days, most of the people, they were asking, as well as of course they also mailed us, may you organize some training program which is technical, please. Yes, we considered your request. Based on that, yes, today we have organized a technical topic which is a very prominent topic, I could say, especially for the manufacturing organization, and that is SPC. Man, especially those people who joined this session from the manufacturing organizations. Yes, this topic is, I don't think so. This topic would be strange, familiar, and especially, of course, every customers, they always always go and audit, right, the SPC reports, internal as well as external audit, of course. So no doubt, this is basically the part, and I could say it's a very prominent part, especially the manufacturing organizations. So it's incumbent to have very diversified as well as a depth knowledge of SPC. So regarding the same, ladies and gentlemen, today we have invited a very, very versatile trainer. He is none other than Mr. Dharamveer Dundela. Before proceeding further, of course, I would like to just give certain brief about our trainer of the day. Ladies and gentlemen, Mr. Dharamveer Dundela, he is having such experience in manufacturing organizations. He is also known as a result-oriented guy and very expert in a manufacturing excellence. Ladies and gentlemen, he has such a rich experience with the various national and multinational organizations. He has worked with organizations like Scent and Vikas. Apart from that, he is having such a rich experience in a various profile in the manufacturing company as well. Like, he headed the pillar of quality, he headed the pillars of project management. Now he is a black belt Six Sigma. Ladies and gentlemen, without wasting your time, of course, I'd like to invite on our board. So it's really our pleasure and privilege, especially for the trainer wings, I could say, Mr. Dharamveer Dundela. He's a very passionate trainer, very, very passionate trainer, I could say, and who accepted our invitations and who just, now, of course, these days, I could say, of course, highly occupied in their, daily routine job. But instead of that, he accepted our invitations, and today he just came on our board for his prominent ideology on this particular topic, ladies and gentlemen, that is SPC. So before proceeding, there are certain requests I'm imploring to all the participants who have joined this session. I request you all, please mute your microphones, as well as try to off your camera off, so that you could get better bandwidth of your internet connectivity, because ultimately in the e-learning process, no doubt, it is a very challenging, right, to have the proper bandwidth of internet. Yes, sir. Apart from that, of course, at the end of the we will open a forum, right, for 10 to 15 minutes for the Q&A part, questions and answer part. Yes, I know in the technical session, it is really incumbent. Most of the people, they are having certain queries regarding their own organization. उनको अपने कंपनी से संबंधित कई सारे सवाल होते होंगे. उस सवाल को हम कोशिश जरूर करेंगे कि आप रिसर्च पाएं हमारे ट्रेनर के द्वारा. सो ये आपकी जो सवाल और जवाब का जो प्रश्न काल जो होगा, वो एंड ऑफ द सेशन में होगा. I think we will try to keep at least 15 minutes definitely at the end of the session. Meanwhile, I'll request you all, you may do one thing. यदि किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होता है, you may write in the chat panel. Definitely our control room team, they will try to write down the questions, as well as they will also try to resolve their either technical issues. If you are not getting the proper audio, definitely our control team will try to resolve ASAP. Apart from that, I request you, this session will be recorded
एंड द रिकॉर्डेड सेशन, ये सेशन है जो रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्डेड जो आज का सेशन होगा विच विल बी अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। हमारे एक यूट्यूब चैनल है ट्रेनर विंग्स के नाम से। आप इस सेशन को दोबारा रिफ्रेश करने के लिए आप उस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को पुनः आप देख सकेंगे। Yes, this video will be uploaded in a couple of days, I think today night. So tomorrow onwards, of course, might be you may get access to see this learning video as well. This is basically, the completely for you all. Objective before proceeding further, before starting the session, one thing actually we would like to just make you aware about that. Trainer Wings is completely just thinking and bringing how we can spread knowledge and skills and experience of the veteran speakers around us, right? So उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, उनकी अर्न की हुई खासतौर पे अनुभव को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा खासतौर पे उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। Completely whoever who are having curiosity and having such a great passion to learn, definitely please make sure that please be with us, learn and hone your skills and make you ready, right, for the future role as well. क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज गुजारिश नहीं होता। यदि आपके पास वो हुनर है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। खासतौर पे ऑफकोर्स इन दिस सिचुएशन आई कुड से मोस्ट ऑफ द पीपल हु लॉस्ट देयर जॉब, सो ऑब्वियसली दोज पीपल हु आर हैविंग सच अ पोटेंशियल, जिसके पास हुनर है, जिसके पास काबिलियत है, उसके पास कोई आई डोंट थिंक सो कि दोज पीपल कैन रिग्रेट। क्योंकि जो मैं अपने जीवन में खासतौर पे कि है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये बहुत ही खूबसूरत एक पंक्ति जो अपने जीवन में मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ, रामधारी श्रीधर जी के लिखा हुआ। सो आई डेफिनेटली आई होप कि whenever you will hone your skills, आप जितना ज्यादा अपने आप को होन करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे नॉलेज और स्किल्स को, तो फिर आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने जीवन में कभी पश्चाताप नहीं करेंगे, डरेंगे नहीं, निडर होकर अपने कर्म पथ पे वही बस चलते चले जाएंगे। So just I would like to invite on our panel, and yes, I have taken much more time, especially. Yes, so ladies and gentlemen, please, I request you all at the end of the session, please like and subscribe our YouTube channel, that is Trainer Wings, so that you could get proper and prompt notifications ASAP. So, I would like to just bring on the board, ladies and gentlemen, please. Of course, I could say you are much more excited, like to meet our trainer. He's Mr. Dharamveer Dundela. Sir, now the dice is open for you, please. Your audio is, I think, just a minute, please. I request my control room to unmute the audio, please. Yeah, good afternoon, Hriday-san. How are you? Yeah, hi. We are really, of course, grateful and very thankful to you, of course, for accepting our invitations or coming on our today board. So it's really our pleasure, my dear. Thank you so much. Even I request you, of course, some people who they have joined, right, and they have also written in our mail that please, sir, make this session in English. Mixture of okay. Yeah, sure. So आपसे गुजारिश है कि I use both the languages, sir. No problem. शुक्रिया, थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल। होप आप सभी लोग घर में कुशल मंगल होंगे, ऑफिसेज में आपके सब ठीक होगा। इफ बीच में अगर किसी को कुछ भी पूछना हो, प्लीज ओपन अपनी वीडियो कीजिएगा और रेज हैंड करके पूछिएगा, ठीक है? तो स्टार्ट करें। Sure, over to you. Yeah, okay, thank you. Comfortable, they may write in the chat panel as well and raise your. Okay. Sure, over to you, sir, please. Yeah, okay, thank you. Good afternoon, guys. So as Hriday-san told, because learning जो होता है ना, किसी भी पीपल के लिए लाइफ में स्किल शार्पन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपकी जितनी अच्छी स्किल्स होगी, उतना आप अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, उतना आप सस्टेनेबल रहेंगे और उतना आप आउटपुट ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है? बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो हमेशा डिजायर्ड आउटपुट ओरिएंटेड पीपल्स को लाइक करती है और उन्हीं की डाइवर्सिफिकेशन के चलते हुए इंडस्ट्रीज ग्रोन करती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है सर, अपने आप को ना
स्किल्ड करना होता है। और स्किल लेने के लिए सबसे पहली प्रोसेस होती है सर एम्प्टी योर कप। अगर आप फुल कप होकर बैठेंगे तो कभी भी मतलब सीखेंगे ऐसा नहीं है, बट वो डिजायर्ड आउटपुट के साथ में, डिजायर्ड इनपुट के साथ में आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस रहता है। तो सीखने का सबसे प्राइम मोटिव रहता है कि एम्प्टी योर कप कर लीजिए, तो आप सीखेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे बड़े हों, कुछ लोग मुझसे छोटे हों, बट अगर आप सीखने के पर्पज से बैठे तो प्लीज सीखने के पर्पज से बैठेगा, आपकी जो भी क्यूरीज हो आई विल ट्राई टू रिजोल्व। ओके, और मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम धर्मवीर है, ऑलरेडी हृदय सर ने एक्सप्लेन कर दिया है। डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में, जापानीज एज वेल एज जर्मन कंपनीज में मैंने काम किया। रिसेंटली मैं कोकी टेक्निक्स के साथ में इन्वॉल्व हूँ, एसोसिएट हूँ एज ए सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर। ओके सर, तो जैसा आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, एसपीसी। सर एक ना बहुत ही वर्सेटिलिटी टूल है, क्वालिटी पीपल्स हो, मैन्युफैक्चरिंग पीपल्स हो, इवन ऑफिस पीपल्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल टूल है। ठीक है, इसको प्रिवेंटिव टूल के तौर पे भी यूज किया जाता है, जो प्रॉब्लम को अक्कर होने से पहले बता देता है। सर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, सिंपल सा अगर हम बोले कि स्टैटिक्स होता क्या, व्हाट इज स्टैटिक्स, राइट? तो आप सब लोग उसमें एक्सपर्ट्स हैं, मे बी पीपल्स स्टैटिक्स की डिफरेंट डेफिनेशंस होती है, बट हम इंजीनियरिंग लैंग्वेज में जो स्टैटिक्स की डेफिनेशन यूज करते हैं वो होती है स्टैटिक इज अ सबटाइल साइंस। ओके सर, स्टैटिक इज ए सबटाइल साइंस, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्वालिटी प्रोग्राम्स। स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन। सर रिपीट करूंगा मैं, जो स्टैटिक्स है वो कलेक्शन करने का टूल है, एनालिसिस करने का टूल है, इंटरप्रिटेशन का टूल है और प्रेजेंटेशन का। ठीक है, कलेक्ट करेंगे आप इसमें डाटा, ठीक है, उसको एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, उस डाटा को कंप्लीटली ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट? वी डील द एस्पेक्ट्स ऑफ डाटा इंक्लूडिंग द प्लानिंग ऑफ डाटा। सर इसमें सिर्फ कलेक्शन करना ही नहीं होता, उस डाटा को हाउ टू एक्सेप्ट करना है, क्या करना है, प्लान करना होता है, पूरा प्लानिंग का पार्ट रहता है ये। ठीक है, तो इसको कलेक्शन की टर्म में सर डिजाइन भी करना होता है, सर्वेज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मतलब डाटा ऐसे ही नहीं लिया जाता है, उसके लिए डिफरेंट स्टेजेस पे आपको जाना पड़ता है। इट मींस एक शॉर्ट फॉर्म पे ग्लिम्स में बोलूं, स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल, जो सैंपल्स आप ले रहे हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैटिक्स। ठीक है, तो मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर करता हूं सर, ताकि आप लोग भी इजीली पढ़ें और साथ में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, राइट सर? तो अभी आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड आ रही होगी, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल। सर जो मैंने बोला कि सबटाइल साइंसेस है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल, क्वालिटी, डाटा कलेक्शन, प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको रीड भी कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो एक्चुअली करते क्या है सर हम इसमें? स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल, सैंपल्स का मीनिंग क्या होता है, इसे यूज, मेक, इन्फ्रेंसेस, पॉपुलेशन, पैरामीटर, एग्जैक्टली होता क्या है? सर पॉपुलेशन एक कोई भी सिनेरियो, कोई भी ज्योग्राफिकल रीजन, कोई भी वर्क एनवायरनमेंट, वहां की जो प्रोपोर्शन वाली टीम होती है ना, एक सेट ऑफ आइटम्स दैट प्रोसेस सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंसर्ट्स। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा उसको कंप्लीट को सिमिलर होगी, उसमें कुछ डिसिमिलरिटीज होंगी, लाइक्स होंगे, अलाइक्स होंगे। ठीक है, उसको जब हम एक सेट में बोलते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। अब उस पॉपुलेशन पे जब हम आते हैं तो उसमें से कंप्लीट पॉपुलेशन पे स्टडी करने के लिए क्या है, इट्स इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो नहीं होता, मतलब डिफिकल्ट टास्क होती है, आपको ह्यूज पॉपुलेशन पे काम करना हो तो हम उसमें से सैंपल्स लेते हैं, उसको डाटा लेते हैं शॉर्ट क्वांटिटी का, उसको सैंपल बोलते हैं। सैंपल क्या है? सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का सबसेट होता है सर, राइट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स होता है किसी भी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो उसको डिस्क्राइब करता है। देन हम इसमें प्रोबेबिलिटी रखते हैं, बिकॉज सर हम एक पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं तो हमें प्रिडिक्ट करना होगा, ठीक है, कि हम किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट फोरकास्ट करने के लिए प्रिडिक्शन बोलते हैं। तो उस प्रिडिक्शन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी की जरूरत होती है कि हम एक सैंपल साइज पे करने के बाद पूरी पॉपुलेशन प्रिडिक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। बट इस प्रोबेबिलिटी बोले तो सर इट्स ए चांस ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट, यानी कोई भी इवेंट होगा उसके अक्कर होने के कितने चांसेस हैं। यानी पी को हम अगर पॉपुलेशन बोले, पॉपुलेशन ऑफ इवेंट्स, ए को नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स बोले, साइज ऑफ सैंपल्स बोलते, दैट इज इक्वल टू पी एन ए बाई एन, कैपिटल एन। कैपिटल एन इज द साइज ऑफ सैंपल्स। ओके सर, देन व्हाट इज प्रोसेस? सर देखो, जब हम प्रेडिक्ट करेंगे, स्टैटिक्स हमने समझ लिया, तो हमें प्रोसेस चाहिए। प्रोसेस हम किसको बोलेंगे? प्रोसेस इज द कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड वर्क्स, टास्क्स initiated in response to an event that achieve a specific result for the customer of the process। देखिए प्रोसेस जो भी होगा उसका एक नेक्स्ट कस्टमर होगा, आउटपुट जाएगा तो उसको कोई ना कोई यूज करेगा, तो इंटररिलेटेड टास्क होती है प्रोसेस। ओके,
अब इस प्रोसेस को जो हम बोलते हैं एक डिफरेंट उस वे में अगर डिफाइन करें इंजीनियरिंग वे में, प्रोसेस मींस द होल कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल्स, इक्विपमेंट, इनपुट, मटेरियल, मेथड एंड एनवायरनमेंट दैट वर्क्स टुगेदर टू प्रोड्यूस आउटपुट. द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस, the quality of its output and the productivity efficiency depends on the way the process has been designed and built and on the way it is operated. The rest of the process control system is useful only if it contribute to improve the performance of the process. देखिए प्रोसेस सर तभी डिफाइंड होता है जब उसमें सभी इन्वॉल्व चीजों की बात करेंगे, इक्विपमेंट हो, वर्क मैन पावर हो, आपका मेथड हो, आउटपुट डिजायर्स हो, ठीक है, कस्टमर्स की क्या नीड है, जब वो सारा एड्रेस करते हैं ना तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं. ओके, देन व्हाट इज कंट्रोल? अब कंट्रोल क्या चीज है सर? कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन. देखो कोई भी हो, आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, लिंक नहीं करेंगे, कंट्रोलिंग के बिगर रखेंगे तो चीजें स्कैटर्ड होंगी. तो उस स्कैटर्ड को रोकने के लिए हम कंट्रोल यूज करते हैं. तो कंट्रोल्स होता है क्या? कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मैनेजरिंग फंक्शन लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्शन. It is an important function because it helps to check the errors and to take the corrective action so that deviation from standard are minimized and set started goal of the organization are achieved in a desired manner. मींस देखिए हम कभी कोई काम करते हैं जो यूनिवर्स का नेचुरल लॉ है कि सभी सेकंड रिपीट चीज जो है ना सेम नहीं होती, उसमें प्लस माइनस रहता है. तो जो हमारा एक डिजायर्ड होता है उसके नियर अबाउट जो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं, उस गोल्स में लाने की चीज करते हैं, तो उसके लाने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज फॉलो करते हैं उसको हम कंट्रोल बोलते हैं. इट मींस कंट्रोल इज अ चेकिंग करंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स contained in the plan with a view to ensure adequate progress and a satisfied performance. ओके सर, इतना आई होप क्लियर होगा कि कंट्रोल क्या होता है, राइट? अब हम बात करते हैं सर व्हाट इज स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल. अब कंट्रोल की बात करें, हमने स्टैटिक की बात, अब कंबाइंड करके हम कैसे यूज करते हैं. इट मींस जब हम स्टैटिकल की बात करते हैं तो एसपीसी द टेक्निक ऑफ मैनेजिंग द क्वालिटी थ्रू एरर प्रिवेंशन. सर जैसा मैंने पहले बोला, एक होता है डिटेक्शन, एक होता है प्रिवेंशन. डिटेक्शन होता है अक्कड़ होने के बाद में, प्रिवेंशन होता है कि अक्रेंस को रोकने के लिए. तो स्टैटिकल जो है ना वो प्रिवेंशन टूल है. हम किसी चीज को हैपन होने से पहले उस एक्शन लेने के लिए जो रोड मैप प्रिपेयर करते हैं उसको एसपीसी बोलते हैं, राइट? स्टैटिकल taking of measures and arrangement of those measurements in a clear pattern to allow prediction to be made on performance. उसमें क्या क्या रहता है सर? डाटा कलेक्शन होगा, आपका डाटा प्रेजेंटेशन होगा, डाटा एनालिसिस होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, ड्राइंग्स पे कंक्लूजन्स होते हैं, ठीक है? अब इस चीज में एसपीसी में इन्वॉल्व फिर प्रोसेस भी है. फर्स्ट हमने स्टैटिक्स को इन्वॉल्व करा, देन प्रोसेस. प्रोसेस क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट प्रोग्राम, दैट इज man, machine, method, material, and one is E is the environment to desired output through logical and interlinked sequence of causes. देखिए जब सर आप अगर बिगर लिंक के ना सीक्वेंसेस को काम करेंगे तो स्कैटर्ड आउटपुट आता है. जब तक हम एक लॉजिक नहीं बनाते, प्रॉपर डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा. देन हमें एसपीसी में थर्ड रिक्वायरमेंट क्या रहती है? कंट्रोल्स की, राइट सर? कंट्रोल्स में क्या होता है सर? मेकिंग समथिंग टू बिहेव इन ए वे वी वांट टू बिहेव. मतलब किसी भी चीज को हमें अपने जैसा डालना है, अपने जैसा करना है, जो हम चाहते हैं उसके लिए हमें जैसा हम सोचते हैं, सेम लाइक माइंडेड पीपल्स का एक ग्रुप तैयार करना होता है. उसी मैकेनिज्म में हमें प्रोसेस को अरेंज करना होता है, टारगेट डिफाइन करना होता है, कंपेयर विद टारगेट. जो हमारा आउटपुट आता है उसको टारगेट के साथ कंपेयर करते हैं, मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं. तो ये सब मिलके क्या होता है? सब कंट्रोल बनता है, राइट? द टोटल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस डिपेंडिंग ऑन कम्युनिकेशन बिटवीन कस्टमर एंड सप्लायर. देखिए सर इसमें कस्टमर, सप्लायर, एंड यूजर और प्रोसेस ओनर दोनों को लिंक करके बनाया गया. इसको आप OEM से मत लिंक कीजिएगा, ये आपके इन हाउस भी हो सकता है, आउट हाउस भी हो सकता है, आपके सप्लायर के साथ भी हो सकता है, आपका इंटर डिपार्टमेंट लिंक भी हो सकता है, ठीक है? अब तो ये हो गया एसपीसी का कि क्या क्या उसमें लगता है, कैसे करते हैं, किस किस चीज को हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है? करते क्यों है? बिग क्वेश्चन ना, एसपीसी क्यों करनी चाहिए? तो बहुत सिग्निफिकेंस है. टेक्निक टू कंट्रोल द प्रोसेस, यानी जो प्रिवेंशन के लिए हम मेजर्स लेंगे उसमें वो टेक्निक है जो कंट्रोल करती है प्रोसेस. टू नो द स्पेशल कॉजेज एंड सो टेक करेक्टिव एक्शन. सर जो असाइनेबल कॉजेज आते हैं ना, स्पेशल कॉजेज, दो टाइप के कॉजेज होते हैं, नेचुरल वेरिएशन, नेचुरल कॉजेज और स्पेशल कॉजेज. तो उसमें स्पेशल कॉज जब आता है उस पर करेक्टिव एक्शन लेने के लिए. इट गिव्स पावर टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस. सर इसमें बहुत पावर होती है प्रोसेस के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की. सो एज टू टेक करेक्टिव एक्शंस बिफोर एक्चुअल हैपनिंग गोन आउट ऑफ कंट्रोल. मतलब हम रिजेक्शन जनरेट करें उससे पहले अगर हमें मालूम पड़ जाए कि रिजेक्शन क्यों हो रहा है तो हम उसको प्रिडिक्ट करके रोक सकते हैं, यानी अपना बहुत सारा लॉस बचा सकते हैं. A more effective method of working is to avoid waste by not providing defective parts in the first place. That requires everyone to concentrate on defect prevention rather than defect detection.
सर देखिए आपको कोई डिफेक्ट मिल गया, उससे कुछ नहीं हो रहा, एक बार के लिए पार्ट तो खराब हो गया, लेकिन अगर आप उस डिफेक्ट को जनरेट होने से पहले ही एक्शन लेकर रोक दें तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा और आपको बेनिफिट होगा, सीधी सी बात है आपकी टीम को बेनिफिट होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस यानी मोरल एनहांसमेंट फ्री मिलता है। SPC is a mean by which to achieve the prevention of defects by highlighting situation when the output of the process is drifting। यानी जब हमारा आउटपुट प्रोसेस का ड्रिफ्ट होता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं तो SPC मीन्स पे काम करते हैं। We can forecast things happening, predict and take corrective actions. Prevention techniques, okay, it's a prevention technique basically. SPC is not superficial। सर सबसे बड़ी चीज ये सुपरफिशियल नहीं है, actually requested by customers रहती है। Generally used in critical dimensions which directly may create problem in our fitment and others। सर ऐसी डायमेंशन जहां में 100% इंस्पेक्शन करना हो या हम उसको कंट्रोल करने में एबल ना हो, वहां पे हम SPC यूज करते हैं। और ये सुपरफिशियल नहीं है क्योंकि ये डाटा बेस्ड होती है। और स्टैटिक्स कैसा डाटा है सर, वो 0-1 में नहीं खेलता, सही गलत नहीं बोलता, वो बोलता है 0 और 1 के बीच में एक्चुअल में क्या हो रहा है। 1 आने से पहले 0.0009 समथिंग रहता है, तो ये जो समथिंग है ना उसको कैच करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये सुपरफिशियल नहीं होता। ओके, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है सर, क्योंकि SPC में जब हम करते हैं तो कंट्रोल्स की बात करते हैं ताकि प्रिवेंशन हो सके, हमारा डिफेक्ट को रोक सकते हैं, तो उसके लिए हमारा एक सिस्टम होता है कंट्रोल सिस्टम। प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम इज ए फीडबैक सिस्टम, ठीक है, एंड SPC इज वन ऑफ दैट सिस्टम। अगर आपको कोई चीज खराब होने वाली है, आप मान लीजिए घर जा रहे हैं अपने और रास्ते में कहीं ट्रैफिक जाम है और आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आप दूसरा रास्ता चुन सकते हैं ना, या वेट कर सकते हैं या उसको सही करेक्ट करने की कोशिश करते हैं अथॉरिटीज के साथ में। तो ऐसे ही SPC हमारा एक फीडबैक सिस्टम है, राइट। It gives the information about the performance, action, process and output of the action. Okay, voice of the process, यानी जब हम स्टैटिकल मेथड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है वॉइस ऑफ द प्रोसेस। जब वॉइसेस प्रोसेस की क्या होती है सर, पीपल्स होंगे, इक्विपमेंट होगा, मटेरियल होगा, मेथड होगा, एनवायरमेंट होगा। पीपल्स आपके सपोज कीजिए कोई आपका अनवेल कर रहा है और ऑपरेटर आपका फीलिंग अच्छी नहीं कर रहा है, तो उससे आप काम लेंगे तो कहीं ना कहीं वो मिसलीड करेगा। इक्विपमेंट में कोई खराबी है, कैलिब्रेट नहीं है, मटेरियल डिफेक्टिव है, मेथड में आपने बाईपास किया या एनवायरमेंट में टेम्परेचर कंट्रोल चीज और वो टेम्परेचर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तो ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो ये प्रोसेस की वॉइस है, तो ये वॉइस फीडबैक देता है स्टैटिकल मेथड के थ्रू, ठीक है। द वे वी वर्क बीइंग ऑफ द रिसोर्स, ठीक है, इसको सबको प्रोसेस करता है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कस्टमर पर जाता है, आइडेंटिफाई होता है, ठीक है, चेंज नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस में, राइट सर। आउटपुट होगा, प्रोसेस सिस्टम होगा, वॉइस ऑफ कस्टमर आएगी, इनपुट जनरेट होगा आपका, आप सब उस पे एक जैसे होता है ना इनपुट प्रोसेस देन आउटपुट, तो ये सारे प्रोसेस में जब आपको इनपुट मिलेंगे, वॉइसेस मिलेंगी, तो आप उस पर काम करेंगे तो एक जीरो डिफेक्ट सिस्टम की तरफ जाएंगे आप, ठीक है। तो स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल क्या है, आपको जीरो डिफेक्ट सिस्टम की तरफ ले जाता है, ड्राइव करता है। सर बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है, क्योंकि हम ये सारा कर रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए ना बेसिक कंसेप्ट्स क्यों है। SPC पे जा रहे हैं, हम स्टैटिक्स को यूज कर रहे हैं प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। वेरिएशन ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, पहली चीज सर, नेचर का लॉ है कि उसमें वेरिएशन रहेगा ही। एज सच नो टू थिंग्स आर एग्जैक्टली अलाइक, कभी भी दो चीजें अलाइक नहीं हो सकती, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, ये नेचर लॉ है। वेरिएशन इज ए प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस कैन बी मेजर्ड, ये प्रोडक्ट का वेरिएशन जो है ना प्रोसेस का प्रोडक्ट होता है, इसको मेजर किया जा सकता है, सबसे अच्छी चीज इसमें होती है। थिंक वेरी अकॉर्डिंग टू डिफाइंड पैटर्न, देखो सर अगर आपका जो वेरिएशन है डिफाइंड पैटर्न में जा रहा है, इट मींस उसको बोलते हैं कि एक होता है ना कंट्रोल्ड रिस्क, एक होता है अनकंट्रोल्ड रिस्क। आपको मालूम है कि आप अगर 100 की स्पीड से अपनी मोटो बाइक चलाएंगे, थोड़ा बहुत भी कुछ खराब रास्ता है तो गिरने के चांस रहेंगे, लेकिन अगर आप उसको 40 पे चला रहे हैं तो आपका इकोनॉमिक भी फायदा होगा और कोलाइजन के चांस सडन कम रहेंगे। तो इसमें ना ये सबसे चीज होती है कि आप अकॉर्डिंग डिफाइंड पैटर्न में चलते हैं। व्हेनेवर थिंग्स ऑफ द सेम थिंग्स आर मेजर्ड, मतलब एक जैसी चीजों को जब एक तरीके से मेजर किया जाए, लार्ज ग्रुप ऑफ मेजरमेंट विल बी टेंड टू क्लस्टर अराउंड द मिडल, यानी जब हम क्लस्टर बनाते हैं तो उसको मिडिल मीन पे रखते हैं। तो ये डिफाइंड होता है हमारा कि हम प्रोसेस में कहां से कहां चलेंगे। इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ द पार्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस। सर हम इसको ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मेरा मीन के पास कितना है, मीन से लेफ्ट में कितना है यानी लोअर साइड में, मीन से प्लस साइड में कितना है यानी अपर साइड में, जो मेरी डिजाइन टॉलरेंसेस है, राइट। द नेचर ऑफ वेरिएशन, सर हमने अभी नेचर में वेरिएशन की बात करी, तो नेचर क्या है वेरिएशन का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, इस वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं सर। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अननोन कॉजेज, यानी जो कॉज हमें मालूम ही ना हो, जिनको हम नॉइजेस बोलते हैं, उनको नेचुरल या कॉमन कॉजेज बोला जाता है। सर इनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इनको मिनिमाइज किया जा सकता है।
सेकंड होता है ड्यू टू स्पेशल कॉजेज, यानी असाइनेबल कॉजेज जो सडन आते हैं, जो किसी रीजन से आते हैं, इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। वेरिएबिलिटी क्या होती है सर? देखो रैंडम होते हैं कॉजेज, कॉमन कॉजेज जो होते हैं रैंडम होते हैं, इनहेरेंट होते हैं प्रोसेस के अंदर, कैन बी एलिमिनेटेड ओनली थ्रू इम्प्रूवमेंट्स इन द सिस्टम। जो नॉन रैंडम होते हैं सर वो स्पेशल कॉजेज होते हैं, ड्यू टू इंडेफिनिटेबल फैक्टर्स के थ्रू आते हैं, कैन बी मॉडिफाइड थ्रू ऑपरेट और मैनेजमेंट एक्शन, यानी कहीं पे मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे ऑपरेशंस में कुछ एक्शन लेने होंगे, ये दूर हो जाती है, ये वेरिएबिलिटी हो जाती है। ठीक है सर। सेकंड होता है असाइनेबल, यानी स्पेशल टाइप के जो वेरिएशंस होते हैं, those are those which are unrelated to the intended design of the process, यानी मैंने प्रोसेस में इस टाइप का डिजाइन ही नहीं किया था, इस वजह से आगे डू नॉट अफेक्ट एवरीवन, हर किसी को इफेक्ट नहीं डालते सर। ये आर अनप्रिडिक्टेबल एंड टेम्परेरी, ये अनप्रिडिक्टेबल होता है, टेम्परेरी होते हैं, यानी कुछ टाइम के लिए आते हैं फिर चले जाते हैं। जैसे मटेरियल वेरिएशन हो गया, पुअर मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक पावर सर्ज, न्यू मेथड, प्रोसीजर्स, अनट्रेन्ड ऑपरेटर। ठीक है, ये कम टाइम के लिए, तो इनको हम क्या बोलते हैं? असाइनेबल कॉजेज बोलते हैं, जो कि हर किसी को नहीं करते, पर्टिकुलर बैच को या क्लस्टर को इफेक्ट करेंगे फिर चले जाते हैं, टेम्परेरी होते हैं नेचर में। जो कॉमन कॉजेज होते हैं ना सर, जो नेचुरल कॉजेज जिनको बोलते हैं, जो इनहेरेंट होते हैं, कॉमन कॉजेज ऑफ वेरिएशन आर इनहेरेंट पार्ट ऑफ द सिस्टम प्रोसेस आफ्टर एवरीवन एसोसिएटेड विद प्रोसेस, ये प्रिडिक्टेबल होते हैं सर। जैसे प्रोसीजर एंड मेथड यूजेस, आप कोई प्रोसीजर बना रहे हो, आपका प्रिडिक्शन है ना कि मैं इस प्रोसीजर से काम करूंगा, तो उस प्रोसीजर में 1 to 10 चलना है तो 1 to 10 काउंट होना है, 11 काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, जो मेथड आप यूज कर रहे हैं कि भाई मेरे को फर्स्ट लॉजिक में राइट जाना है, राइट 30 सेंटीमीटर जाके लेफ्ट मुड़ना है नॉर्थ की साइड में, तो ये सारा डिफाइंड होता है। तो मेथड जो यूज कर रहे होते हैं उसमें आते हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गिव्स करके हम इसको दूर कर सकते हैं। मशीन मूवमेंट्स का होता है कि भाई मेरा अभी तक तो रैम अगर 30 का था, उसको मैंने 35 कर दिया तो क्या आएगा, तो ये आपका नेचुरल होता है, आपको नोन कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से ये आते हैं आप, राइट। देन सर इस जो प्री कंडीशंस होती है ना, कलेक्टिंग डाटा, हमने शुरू में बात करी थी ना कि सैंपल लेंगे, सैंपल साइज में क्या है, डाटा लेते हैं, तो ये एट्रीब्यूट डाटा भी हो सकता है, आपका वेरिएबल डाटा भी हो सकता है। तो पहले हम बात करते हैं एट्रीब्यूट डाटा। एस्टेब्लिश ए क्लियर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, यानी लिमिट सैंपल्स, उन सैंपल से देख के हम यस नो करते हैं। विजुअल रेफरेंसेस टू डेमोन्स्ट्रेट एक्सेप्टेबल और नॉन एक्सेप्टेबल, communicate the standard to appropriate personnel, ensure that assessment personnel have appropriate faculty and aptitudes, train and develop personnel, ensure correct environment for the task, verifying the gauge equipments, encourage everyone to keep the standard। ठीक है सर, तो ये एट्रीब्यूट डाटा, क्योंकि एसपीसी ऐसा नहीं है कि आप वेरिएबल्स पे करोगे, आप एट्रीब्यूट पे भी करते हो, उस पे भी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो एट्रीब्यूट के लिए कंडीशन क्या रहेगी डाटा कलेक्शन की, तो हम ये स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं जो प्रेस्क्राइब्ड आपके सामने स्क्रीन शेयर पर है, राइट। देन इसमें हम कंट्रोल चार्ट्स यूज करते हैं सर। कंट्रोल चार्ट्स होते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। अब इस जब हमने एट्रीब्यूट डाटा कलेक्ट करा और कंट्रोल चार्ट्स को देखेंगे, कैसे करेंगे हम, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेंड्स, यानी स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेंड चार्ट्स होते हैं जो लिमिट स्पेसिफिकली होते हैं, यूज्ड टू असेस एंड मेंटेन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। दिस इंडिकेट्स वेदर द प्रोसेस वेरिएशन इज नेचुरल एंड एक्सपेक्टेड, यानी चांस वेरिएशन है, और ड्यू टू स्पेशल कॉजेज। ठीक है, एक सैंपल दिया हुआ है 4.7 मिनिमम लिमिट है आपकी, 5.25 मैक्सिमम है। लोअर केस लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, आपकी कंट्रोल लिमिट मीन पे चाहते हैं आप, जो उसके ऊपर जितना भी डाटा जाएगा पर कंट्रोल लिमिट से, वो आउट ऑफ कंट्रोल कहलाता है। ओके, तो ये किस पे काम करता है सर? ये कंट्रोल लिमिट थ्योरम पे करता है। कंट्रोल लिमिट थ्योरम क्या बोलती है सर? कंट्रोल लिमिट थ्योरम बोलती है इट स्टेट्स इवन इफ द आउटकम्स ऑफ द प्रोसेस टोटल पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बट सैंपल्स एवरेज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन चार्ट, यानी आपकी हो सकता है प्रोसेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे ना जा रही हो, बट कंट्रोल चार्ट को प्रिडिक्ट होती है, दिखती है, तो वहां से आप उसको इजीली कैप्चर ग्राफ कर सकते हो। सर अब इन कंट्रोल चार्ट्स को कहां पे यूज करते हैं? प्रोसेस हैज ए टेंडेंसी टू गो आउट ऑफ कंट्रोल। प्रोसेस इज पर्टिकुलरली हार्मफुल एंड कॉस्टली इफ इट गोज आउट ऑफ कंट्रोल। तो सर जहां भी ये चीज होगी हम वहां कंट्रोल चार्ट्स लगा देते हैं, ताकि हम आवरली, वीकली, फोर्टनाइट, मंथली, यानी जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए स्टैंडर्ड डिफाइन किया है या आपने एक बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू किया है, तो उसको हम कंट्रोल चार्ट्स के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं। ओके, एग्जांपल्स, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, बिकॉज दिस इज द वर्स्ट ऑफ टाइम एंड मनी टू बीइंग प्रोडक्शन प्रोसेस विद द बैड सप्लाईज, क्योंकि शुरुआत में आपको कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता, आप डिजाइन के थ्रू चलते हैं, प्लस माइनस उसमें ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम पे कंट्रोल चार्ट्स लगाना बहुत मैंडेटरी होता है। बिफोर ए कॉस्टली और इरिवर्सिबल पॉइंट, यानी कोई ऐसी प्रोसेस है कि वहां से आप रिवर्स ही नहीं हो सकते हैं और कॉस्टली है बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रक्टिव है, आफ्टर विच प्रोडक्ट्स इज डिफिकल्ट टू रिकवर और
रिवर्क और करेक्टेड, यानी उसके बाद में जब डिस्ट्रक्टिव कोई चीज है तो आप उसको रिवर्क भी नहीं कर सकते हो, करेक्ट भी नहीं कर सकते, तो आपका लॉस होगा। बिफोर एंड आफ्टर असेंबली ऑफ पेंटिंग ऑपरेशन दैट माइट कवर डिफेक्ट्स, यानी आपको उससे पहले जहां पे आप पेंट्स के थ्रू उसको छुपा सकते हैं। बिफोर द आउटगोइंग फाइनल प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड डिलीवर्स, यानी डिलीवरी से पहले, तो आप उसको चेक करने के लिए कंट्रोल चार्ट्स यूज कर दिए। आपको क्या है, वहां पे कंट्रोल लिमिट वाले पार्ट्स आप सप्लाई करेंगे तो आपका कस्टमर भी हैप्पी, कस्टमर हैप्पी तो ऑर्गेनाइजेशन हैप्पी और आप ऑलरेडी हैप्पी। ओके सर, एडवांटेजेस क्या होती है कंट्रोल चार्ट की? इट गिव्स ए पिक्चोरियल व्यू। ओके, इट गिव्स ए पिक्चोरियल व्यू। देखिए सर, पढ़ने से पहले आपके निगाह जाती है कहीं पर भी तो आपको अगर कोई पिक्चराइज में दिखता है, जैसे हम किसी मूवी का एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो पूरी स्टोरी थोड़ी लिखते हैं, वो वहां पे पिक्चर्स में, पोस्टर्स में दिखाते हैं, तो विजुअलाइज करते हैं। ऐसे कंट्रोल चार्ट क्या करते हैं सर, हमें विजुअलाइजेशन पावर देते हैं। इट गिव्स ए पिक्चर व्यू ऑफ द प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस, जो मेरी प्रोसेस चल रही है और वो कैसा परफॉर्मेंस का पिक्चोरियल व्यू देते हैं। इट टेल्स ए ग्लेंस, एक ग्लेंस में बता देता है पूरी प्रोसेस की बिहेविंग कि कहां पर है आपका, नेचुरल है और कॉमन कॉज की वजह से। ठीक है, इट्स ए टूल टू डिटेक्ट द प्रेशर ऑफ असाइनेबल कॉजेज इन प्रोसेस। ठीक है, मतलब एक टूल है कि डिटेक्ट करने का, कि परस्यू करने का, कि कैसे ले रहे हैं हम, असाइनेबल कॉज है या आपका नेचुरल वेरिएशन। इट टेल्स व्हेन ए प्रोसेस शुड बी करेक्टेड एंड व्हेन इट शुड बी लेफ्ट अलोन, यानी आपको बताती कि कब आपको प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देनी है ताकि अपनी प्रोसेस सुधर जाए, या कहां पे आपको प्रोसेस को रोक देना है, यानी अकेले छोड़ देना। अकेले छोड़ने का मतलब नहीं है तो उसको भूल जाना है, इसलिए मेजर टीम्स होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग होकर आप उसको, वो जो आपका रूट कॉज है उसको रिमूव करते हैं। राइट, टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट। देखिए कंट्रोल चार्ट रहेंगे तो हमारे पास क्या है, वेरिएबल डाटा भी है और नॉन वेरिएबल डाटा भी है। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो कंट्रोल चार्ट्स भी उसके लिए डिफरेंट वेरिएबल डाटा और एट्रीब्यूट डाटा में हम कौन से कंट्रोल चार्ट्स यूज करते हैं, एक ग्लिम्स में देख लेते हैं। वेरिएबल डाटा जहां होगा विच कैन टेक अप ऑन एनी वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू होगी, चाहे यूनिट टॉलरेंस हो या ड्यूअल टॉलरेंस हो, आप वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, विच कैन टेक अप एनी वैल्यू, एग्जांपल लेंथ, विड्थ, टेम्परेचर एक्सेट्रा, आप यहाँ करेंगे। डाटा कलेक्शन इज डन बाय मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट से डाटा होता है, आप वर्नियर लेंगे, माइक्रोमीटर लेंगे, टेम्परेचर गेज लेंगे, उससे करेंगे। तो यहाँ पे एक्स बार और आर चार्ट्स यूज किए जाते हैं। राइट, जब हम एट्रीब्यूट डाटा की बात करेंगे तो जिसको हम क्लासिफाइड करते हैं गुड, नॉट गुड, बैड, ओके, नॉट ओके, इसमें तो वहां पे डाटा कलेक्शन होता है काउंटिंग के थ्रू, यानी डिफेक्टिव। जब हम डिफेक्टिव की बात करेंगे तो पी एंड एनपी चार्ट यूज करेंगे, जब हम डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो सी एंड यू चार्ट यूज करेंगे। राइट, अब डिफेक्ट एंड डिफेक्टिव, देखिए इसको क्लियर करना बहुत जरूरी होता है कि डिफेक्ट किसे बोलते हैं। डिफेक्ट से blemish, flaw or non-conformity which cause an item to be rejected, example dent, paint, है ना, blemish, scratch, blow holes. It is possible to have more than one defect in one single item, यानी एक सिंगल आइटम में एक से ज्यादा डिफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम डिफेक्टिव किसको बोलते हैं, डिफेक्टिव इज अ कंपोनेंट और एन आइटम विच इज अनएक्सेप्टेबल टू बी यूज, यानी जब हम उसको यूज के लिए एक्सेप्टेड ही नहीं कर सकते उसको हम डिफेक्टिव बोलते हैं। तो डिफेक्टिव के लिए कौन सा यूज करेंगे, पी एंड एनपी चार्ट, और डिफेक्ट के लिए कौन सा यूज करेंगे, सी और यू चार्ट। राइट, वर्क ऑन कंट्रोल चार्ट्स, देखिए जहां पे वेरिएबल डाटा होगा वहां कंट्रोल चार्ट्स में जब वर्क करेंगे तो उसके लिए हमें डाटा कलेक्शन की टेक्निक होनी चाहिए। तो डाटा कलेक्शन टेक्निक्स में क्या रखेंगे हम, जब डाटा कलेक्ट करते हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है 25 सब ग्रुप एटलीस्ट की। राइट, बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ कंट्रोल चार्ट्स वी कैन फाइंड वेदर द प्रोसेस इज इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। तो हमें वहां देखना होता है कि हमारे प्रोसेस जो है, जो डिजाइन लिमिट्स है, अपर कंट्रोल लिमिट्स, लोअर कंट्रोल लिमिट्स, उनके विद इन कंट्रोल लिमिट्स और आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जहां भी हम आउट ऑफ कंट्रोल के सिम्टम दिखते हैं हमको वहां अपने प्रिकॉशंस लेने होते हैं, अपने आप को करेक्ट करना होता है, पूरी प्रोसेस को चेक करना होता है। अब इसके कुछ लिमिट्स होती है सर, पॉइंट्स आउटसाइड द कंट्रोल लिमिट हो वहां पे करेंगे, या 7 और मोर कंसेक्यूटिव रीडिंग्स इन वन साइड, चाहे आपकी वो अपर लिमिट की साइड है या लोअर लिमिट की साइड, मतलब कंसेक्यूटिव 7 एक के बाद एक लगातार आपकी आ रही है तो आपको अवेयर हो जाने की जरूरत है। सर ट्रेंड्स, जो ये ब्लो ट्रेंड्स देख रहे हैं, ए ट्रेंड इज डिस्क्राइब्ड बाय 7 और मोर कंसेक्यूटिव, ठीक है, मोर कंसेक्यूटिव इंटरवल्स देन द कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चाहे आपका प्लस में जाए या माइनस में जाए, वो ट्रेंड कहते हैं हम उसको। जैसे होता है ना साइन वेव में चलता है, एक बार प्लस साइड गया, एक बार माइनस साइड गया, फिर कुछ कंसेक्यूटिव पॉइंट्स चलेंगे, बट 7 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन ए सेम टाइम नहीं होने चाहिए। हगीनेस क्या होती है सर, सेंटर लाइन जो है मेरी, जहां पे मैं चाहता हूं कि मेरी प्रोसेस स्टेबलिश रहे, कंट्रोल लिमिटिंग बोलते हैं। ट्रेसिंग एंड मूविंग कॉज करता है वहां से, उस एक रेफरेंस लाइन के थ्रू सारा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हगिंग बोलते हैं। राइट, ए प्रोसेस इज इन कंट्रोल इफ, सर हम प्रोसेस को कब कंट्रोल बोलेंगे,
क्योंकि स्टैटिक्स कर रहे हैं तो अब उसमें हम डाटा कंट्रोल चार्ट पे लिमिट कर रहे हैं, हम रीड कर रहे हैं उसको, तो अब उसमें आ रहा है कि भाई मेरी प्रोसेस कंट्रोल है या नहीं है। उसको कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड की डेफिनेशन में डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम कंट्रोल्स पे लिखते हैं कि प्रोसेस को हम कंट्रोल कब बोलेंगे, राइट। नो सैंपल पॉइंट्स आउटसाइड लिमिट, यानी जो मेरी अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट है ना, अपर की और लोअर की, उससे मेरा कोई भी सैंपल पॉइंट बाहर ना जाए। अगर बाहर नहीं जा रहा है तो मैं उसको कंट्रोल बोल सकता हूं कि मेरी प्रोसेस कंट्रोल में है, राइट। सेकंड, मोस्ट पॉइंट्स नियर प्रोसेस एवरेज, आपके ज्यादा से ज्यादा चीजें मीन के पास में रहना चाहिए। सर देखिए, मीन पे काम करना अच्छा होता है ना, मीन परफॉर्मेंस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस, राइट। जो मैन्युफैक्चरिंग से हैं लोग वो इसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि मीन वाली चीजें जल्दी क्वालिफाई करती हैं, राइट। तो प्रोसेस मैं कब कंट्रोल और बोल सकता हूँ दोबारा, जब मेरा पॉइंट्स जो है, जितने भी ऑब्जर्वेशन आ रही है, मेरा मेजरमेंट आ रहा है, वो मेरा पॉइंट्स के मीन के पास में हो, ओके। अबाउट इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अबव एंड बिलो सेंटर लाइन, यानी मेरे देखिए अगर मेरे बराबर बराबर पॉइंट नहीं है ना, तो सर कहीं ना कहीं आउटलायर्स आए, यानी मेरे मीन लाइन के पास अपर साइड में भी और लोअर साइड में भी एवरेज आउट होना चाहिए पॉइंट्स का, अबव एंड बिलो लाइन इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है सर, सेंटर लाइन के पास में, यानी सुपरफिशियल नहीं लगनी चाहिए, तब मैं कंट्रोल बोल सकता हूँ उसको। पॉइंट्स अपीयर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, सर देखिए हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं, क्योंकि एसपीसी जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे करती है वो बोलती है कि अगर एक चीज पीक पे गई है तो वो बॉटम पर भी आएगी। अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो इट मींस कहीं ना कहीं आउटलायर्स ने एंट्री कर ली है, कोई टेम्पर्ड कर रहा है डाटा। तो अगर आपको प्रोसेस में ऐसा नहीं दिख रहा है, मान लीजिए सारे पॉइंट्स ही आपको अपर लाइन पे दिख रहे हैं या मीन लाइन के ऊपर दिख रहे हैं या मीन लाइन के नीचे दिख रहे हैं मीन लाइन से, तो आप उसको कंट्रोल नहीं बोल सकते। अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हैं, यानी अपर में भी है नीचे में भी है, तो उसको हम रैंडमली जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम उसको प्रोसेस को कंट्रोल प्रोसेस बोल सकते हैं, राइट। सर जॉन पैटर्न है, इसको देख लेते हैं हम एक बार में कि देखिए अपर कंट्रोल लिमिट का जोन ए जोन बी, ठीक है, प्लस 3 सिग्मा अप प्लस माइनस 3 सिग्मा डाउन में हम प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं ना जोन्स में। तो 3 सिग्मा क्या होता है, एक्स डबल बार, यानी जो आपकी एवरेज निकल कर आएगी उसको A2 into R, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेरे एट्रीब्यूटर्स होते हैं, मेरा डिजाइन डाटा होता है, ठीक है। R जो है मेरा उसमें से लेते हैं हम लोग, रेंज में से निकालते हैं। A2 जो मेरा स्टैटिक्स का डाटा होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा की वैल्यू निकालते हैं, तो ऐसे ही नीचे हम निकालते हैं। तो ये मेरे जोन्स होते हैं जैसा हमने अभी डिफाइन किया, राइट। अब कंट्रोल चार्ट का सर पैटर्न क्या होता है, देखिए कंट्रोल चार्ट नॉर्मली जो ऊपर डिस्कस करा है कि कब मेरी लिमिट है नहीं, बट पैटर्न क्या होना चाहिए, व्हाट इज द गुड पैटर्न ऑफ कंट्रोल चार्ट्स, राइट। कंट्रोल पैटर्न 8 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑन वन साइड ऑफ द सेंटर लाइन। अगर सेंटर लाइन से एक मतलब 8 पॉइंट्स मेरे लगातार कंसेक्यूटिव पॉइंट एक साइड में सेंटर लाइन से, इट मींस मेरे को सोचने की जरूरत है। कंट्रोल चार्ट का ऐसा पैटर्न नहीं होना चाहिए, राइट। कंसेक्यूटिव पॉइंट्स अप और डाउन अक्रॉस जोन्स, 8 पॉइंट्स लगातार हैं, इट मींस कोई ना कोई सुपरफिशियल आउटलायर एंटर किया है। 14 पॉइंट्स अल्टरनेटिवली अप और डाउन, यानी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है कि रैंडम होना चाहिए। अब आपके अल्टरनेटिव एक ऊपर गया दूसरा नीचे गया, अगर चारों पॉइंट्स ऐसे हैं तो आपको अवेयरनेस की जरूरत है, अवेयर हो जाना चाहिए आपको, पैटर्न अगर ऐसा दिख रहा है। 2 out of 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन ए जोन, अगर 2 या 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स एक ही जोन में लगातार है बट स्टिल इनसाइड द कंट्रोल लिमिट, तो आपको देखना चाहिए उसको प्रोसेस को, राइट। 4 out of 5 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स इन ए जोन ए और बी, यानी अपर में या लोअर में अगर 5 में से 4 एक ही साइड में है ना, तो भी आपको पैटर्न अच्छा है देखना चाहिए, राइट। सर स्टेप्स क्या होते हैं फॉर एक्स बार और आर चार्ट के लिए, यानी मैं जब एक्स बार की बात करूंगा, एवरेज की बात करूंगा, तो स्टेप्स होते हैं उसमें इन्वॉल्व। हम उन स्टेप्स को कैसे करते हैं सर, द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग ऑफ द कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स आर एंड एक्स चार्ट, ठीक है। डिटरमाइन द साइज ऑफ सैंपल ग्रुप, सैंपल ग्रुप का साइज होना चाहिए, यानी अपर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार प्लस माइनस प्लस A2 into R बार, ओके। डिजाइन ए सुटेबल टैली शीट, यानी लोअर कंट्रोल लिमिट एक्स बार माइनस A2 R बार, ओके। कलेक्ट डाटा अंडर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशंस विदाउट एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ A2 मोर देन कॉमन ग्रुप साइज R, ओके। ये मैं आगे बताऊंगा कि कैसे लिखते हैं इस वैल्यू को। कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू एक्स एंड आर रेंज की, जो आपको वैल्यू है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिफरेंस बिटवीन द लार्ज एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज इन दिस ग्रुप को करना है आपको। तो कैलकुलेटिंग कंट्रोल लिमिट्स करते हैं आर के केस में, वो UCL D3 मल्टीप्लाई बाय XR, यानी जो मेरा एवरेज है और रेंज है उसके एवरेज से
यूसीएल होता है मेरा जो अपर कंट्रोल लिमिट होगा D4 इंटू आर। ओके, सो यहाँ पे यूसीएल नहीं था, यहाँ एलसीएल केस में था इसके। कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द एवरेज एक्स, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द रेंज आर, कैलकुलेट द कंट्रोल लिमिट्स ऑफ फॉर द एक्स चार्ट यूजिंग द फॉर्मूला, राइट। तो वैल्यूज ऑफ D3 D4 सैंपल ग्रुप्स के ऊपर डिपेंड करता है। साइज आर गिवन इन द टेबल, टेबल में आपको दिखाता हूँ, उसमें होता है डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू 2 पोर्शंस, दैट इज वन एक्स and second for the R chart, right? Okay, then periodic observations are taken on x axis and y axis. Okay, so जो R के लिए होंगी मेरी वो y axis पर होंगी, x के लिए मेरी x axis पर होती है। Select an appropriate scale and draw central line and control limits draw करनी है। Plot the observations and look out the indication of the process going out of the control trend, right? सर अब मैं एट्रीब्यूट्स वाले पी एंड एनपी चार्ट की बात करता हूँ जो मेरे डिफेक्टिव्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मेरा पी एंड एनपी चार्ट जो डिफेक्टिव के लिए यूज होता है। पी चार्ट क्या बोलता है, कंट्रोल लिमिट जो होती है पी बार होती है। पी बार क्या होता है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स और टोटल नंबर ऑफ चेक। आपने टोटल नंबर कितने चेक करे और टोटल नंबर डिफेक्ट कितने, उससे हम पी बार की वैल्यू निकालते हैं। अब अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करनी हो तो पी बार प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय पी, है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस पी डिवाइडेड बाय एन, और इसकी रेज टू पावर 2 होती है। ऐसे ही मेरे को अगर लोअर लिमिट निकालनी है तो पी प्लस की जगह माइनस आ जाता है। टेक एलसीएल जो होता है लोअर कंट्रोल लिमिट, वो 0 लेते हैं व्हेन इट गिव्स नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा ये यस नो प्लस माइनस ओके एनजी इसमें जाता है। जब हम एनपी चार्ट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट कैसे करेंगे। एनपी के लिए एनपी जो होता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, नंबर ऑफ सैंपल टेकन, एनपी प्लस, यानी सेम फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे भी सेम हम क्या करेंगे, टेक एलसीएल 0 लेते हैं, यानी जब हम डिफेक्टिव्स की बात करते हैं, राइट सर। सी एंड यू चार्ट, सर हम डिफेक्ट्स की बात करेंगे तो सी एंड यू चार्ट यूज करते हैं। उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, द चार्ट्स आर यूटिलाइज फॉर कंट्रोलिंग डिफेक्ट्स, यानी कंट्रोलिंग जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए होता है। यू चार्ट आर यूज फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ कंटेन कांस्टेंट साइज, यानी आपका 100 का बैच बन रहा है, 1000 का बन रहा है, लेकिन जब आपका वहां पे हम सी चार्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर मेरा वेरिंग कर रहा है साइज, यानी कभी 500 का लॉट आ गया, कभी 1000 का लॉट आ गया, कांस्टेंट नहीं है, तो हम यू चार्ट का यूज करेंगे। सी चार्ट के केस में वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए सेम, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कितना आया आपका, जो नंबर ऑफ सैंपल्स था उससे लिया, तो वहां पे प्लस माइनस से डिवाइड करते हैं। इसमें भी जो लोअर लिमिट है वो हम 0 लेते हैं, बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज आती है। अब यू कंट्रोल में जब हम यू की बात करते हैं, साइज वेरिंग करता है, तो टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट डिवाइडेड बाय उस नंबर से, पर्टिकुलर नंबर से डिफाइन करते हैं, राइट सर। तो आई होप यू एंड सी चार्ट्स आपको क्लियर होंगे। तो ये था सर हमारा जहां पे हम एट्रीब्यूट डाटा यूज करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेरिएशन इन मेजर्ड डाटा में, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेंज वैल्यूज जो मिलती है, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा यूज करते हैं, सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। तो रेंज होती है मेरी मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। जैसे मेरा कोई डाटा लिया मैंने 10 to 10.6 तक गया, तो इसमें मेरी मैक्सिमम रेंज क्या है, 13 की है। मिनिमम रेंज कितनी है, 3 है, तो मेरा रेंज कितना है, 3। ओके, 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करता हूँ, जब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ तो मेरा सम ऑफ, यानी जो मेरे सैंपल साइज था उनका एवरेज वैल्यू, राइट, उसके पावर 2 और डिवाइडेड बाय n और मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज, यानी मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, राइट। मेजरमेंट ऑफ द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, जब सेम काइंड की बात करते हैं तो सर हम मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, 3 सिग्मा लेफ्ट 3 सिग्मा राइट, सेंटर वैल्यू से एरिया ऑन टोटल पॉपुलेशन को मैं ऐसे शो करता हूं जब भी मैं अपना डाटा नॉर्मली प्लॉट करूंगा, राइट। तो मेरे इसमें ना कैलकुलेशन रहता है कि 34.31% डाटा इधर होगा, 34.3.1 मेरा 3 सिग्मा में आता है, फिर 2 सिग्मा 1 सिग्मा, ये सारा स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स का है, साइंटिफिक कैलकुलेटेड है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट। अब प्रोसेस कैपेबिलिटी, सर प्रोसेस तो मैंने निकाल लिया, मेरी अब प्रोसेस देखना है, मैंने आपको कंट्रोल चार्ट भी कर लिए कि मेरी प्रोसेस कैपेबल है या नहीं है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इससे मिनिमम वेरिएशन इन द प्रोसेस कैन अचीव। देखो सर, वेरिएशन को 0 नहीं किया जा सकता बट मिनिमाइज किया जा सकता है, तो हम इसके थ्रू क्या करते हैं, वेरिएशन को प्रोसेस को अचीव करने की कोशिश करते हैं मिनिमम वेरिएशन के साथ में कैपेबिलिटी में। इट डिफाइंड बाय द सिग्मा लिमिट, सिग्मा लिमिट से डिफाइन करते हैं, और आइदर साइड ऑफ द मीन, यानी टारगेट जो मेरा उसके साइड में। इट इज द इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी जब मैं प्रोसेस कैपेबिलिटी की बात करता हूँ, इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है, मेरे को देखना होता है कि मेरा सिग्मा टेंड्स क्या कर रहा है, माइनस साइड में प्लस साइड में, दोनों साइड को कैलकुलेट करते हैं, तो प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडाइसेस कैलकुलेट करते हैं हम लोग। पर्पस ऑफ प्रोसेस कैपेबिलिटी, सर प्रोसेस कैपेबिलिटी को कैलकुलेट करने का पर्पस क्या होता है।
इसका पर्पस होता है सर प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएटिंग ए प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को इवैल्यूएट करना होता है। डिटरमाइन द प्रोसेस इज कैपेबल रिलेवेंट टू इट्स स्पेसिफिकेशन, यानी मेरी जो भी स्पेसिफिकेशन है अगर मेरे उसमें प्रोसेस नहीं आ रही है तो मैं उसको कैसे कह सकता हूँ, राइट। तो स्पेसिफिकेशंस में करना होता है। डिटरमाइन द सेंटरिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, यानी मेरी सेंटर टेंडेंसी क्या है और मेरी प्रोसेस का स्प्रेड फैलाव कितना, वो देखने के लिए हम प्रोसेस कैपेबिलिटी का यूज करते हैं। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग आउट द प्रोसेस कैपेबिलिटी, फ्रीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर, हिस्टोग्राम और कंट्रोल चार्ट, इनके थ्रू हम इसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब प्रोसेस कैपेबिलिटी को ना सर दो चीज में डिफाइन किया जाता है। जैसे प्रोसेस स्प्रेड मैंने बोला उसको हम सीपी से डिनोट करते हैं, और सीपीके को यानी सेंटर टेंडेंसी जो मेरी सेंटर के साथ में कितना है अलाइन है मेरी प्रोसेस, उसको हम सीपीके से यूज करते हैं। इनको हम प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडाइसेस बोलते हैं, राइट। यूजफुल मेजर ऑफ मेजरमेंट ऑफ द हेल्थ ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस की जब मेरे को हेल्थ देखनी है तो मैं सीपीके का यूज करता हूँ। सीपी कहां पे करेंगे सर हम, कंपेयर जब प्रोसेस स्प्रेड को देखेंगे यानी मेरा फैलाव कितना है प्रोसेस का, उसको देखने की बात आएगी तो हम स्पेसिफिकेशन विड्थ की बात करते हैं, ठीक है। इस यूज्ड विद टू साइड स्पेसिफिकेशन यानी प्लस माइनस, वांट्स टू फिट एटलीस्ट 8 सिग्मा, 8 सिग्मा में फिट होना चाहिए। यूसीएल माइनस एलसीएल डिवाइडेड बाय 6 सिग्मा, यानी सीपी मेरा सर जो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है मेरा एआईएजी मैनुअल बोलता है, वो बोलता है कि 1.67 लीस्ट रहना चाहिए। और आजकल तो सर कस्टमर्स ने ना स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डाल दी है, वो 2 मांगते हैं सीपी को, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। कहते हैं अगर आप डिजाइन स्टेज पे इनिशियल स्टेजेस पे 1.67 अचीव करेंगे तो डिटोरेट होती है, तो वो 2 बोलते हैं कि अगर 2 करेंगे तो लॉन्ग टर्म में जाएगी, डिटोरेशन भी होगा, तो एटलीस्ट मेरे को 1.67 उस केस में भी मिल जाएगी, अचीव हो जाएगी। जब मैं सेंटर टेंडेंसी की बात करता हूँ सीपीके, एडहेरेंस बोथ सेंटरिंग एंड स्प्रेड, यानी ये दोनों को डिफाइन करता है वी शेप में करके कि मेरा सेंटर से कितना कहां शिफ्ट हो रहा है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ यूएसएल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा, और एक्स जो बार है मेरा एक्स का एवरेज आउट जो करा है माइनस एक्स माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा। सर इसमें हम वांट्स क्या रहता है 1.33 रहता है, और इसमें हम जो मिनिमम वैल्यू जेड वैल्यू आती है, क्योंकि 2 जेड सम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, Z1 Z2 सीपीके में एक मिनिमम साइड में एक अपर साइड में, ठीक है। जो उसका मिनिमम होगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, राइट। बट आजकल कस्टमर्स ने स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट के थ्रू कहा है कि सीपीके मेरे को एटलीस्ट 1.67 चाहिए कि अगर आपकी स्ट्रेंजिक प्रोसेस नहीं है तो, राइट। सर अब ये सारा हो गया, अब इसमें एक्शंस कब लेने होते हैं। अगर मैं जब वेरिएबल्स की बात करता हूँ, व्हेन टेक द एक्शंस, ए सिंगल पॉइंट गोज बियॉन्ड कंट्रोल लिमिट्स, अगर कंट्रोल लिमिट से एक सिंगल पॉइंट में बियॉन्ड चला जाए ना तो मेरे को एक्शन लेना होता है। 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स आर नियर द सेम लिमिट अबव और बिलो, सेम पास पास आ रहे तो मेरे को एक्शन लेना होता है। ए रन ऑफ 5 पॉइंट्स अबव और बिलो द प्रोसेस मीन, मतलब कंटिन्यूस एक साथ आपके 5 पॉइंट्स ऊपर किसी प्रोसेस में बिलो या अबव या माइनस अपर साइड लोअर साइड में गए तो आपको एक्शन लेना होता है। तो ये एक्शन हम क्यों लेते हैं सर, पहले ही ताकि हमें रिजेक्शन ना मिले। अगर हम इस पॉइंट पे एक्शन नहीं लेंगे तो वो टेंस क्या करेगा, कुछ टाइम बाद जाके आपको रिजेक्टेड आउटपुट देगा, यानी अनएक्सेप्टेबल आउटपुट देगा, नॉट ओके आउटपुट देगा, राइट। 5 और मोर पॉइंट्स ट्रेंडिंग टुवर्ड्स आइदर लिमिट, यानी एक तरफ ही जाने की कोशिश कर रहे हो 5 पॉइंट, तब हम लेते हैं। ए शार्प चेंज इन द लेवल, किसी भी लेवल में शार्प चेंज आ जाए। अदर इरेटिक बिहेवियर, कोई भी अदर इरेटिक बिहेवियर आ गया तो आप एक्शंस लेंगे, ठीक है सर। ये एक डिजायर्ड चार्ट रहता है सर, फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सैंपल साइज क्या रख, अगर आपने सैंपल साइज पॉपुलेशन में से 5 का लिया है तो A2 की वैल्यू आप जब एक्स चार्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0.58 यूज करते हैं। फैक्टर्स फॉर D3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यानी रेंज में आएंगे तो 0 रहेगी, और D4 में 2.11 आएगा। सर ये डिफरेंट सैंपल साइज के लिए डिफरेंट आपके फैक्टर्स रहेंगे, कांस्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रोसेस में कैलकुलेशंस करते हैं जब हम इंडाइसेस की यूज करने होते हैं, राइट। सर स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, अब मैं बात करूं स्टैटिक प्रोसेस कंट्रोल में, सर AIG PPAP का 4th एडिशन है, ठीक है। 5th की वेट कर रहे हैं, शायद जल्दी रिलीज भी हो जाएगा। 2.211.3 एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है सर। ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या बोलता है, the organization shall use the following as acceptances criteria for evaluating initial process study result for process that appreciable stable, ठीक है। जब रिजल्ट की बात करेंगे, अगर इंडेक्स में आपका 1.67 आ रहा है, ठीक है, तो मीट्स एक्सेप्ट
प्रोसेस आउटपुट कंट्रोलर से बात करनी कि सर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ बट कंडीशंस के साथ में रहेगा ये। अगर आपका बिलो 1 पॉइंट मतलब इंडेक्स 1.33 से बिलो आ रहा है यानी 1.33 आपका ज्यादा है तो डज नॉट मीट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया से मीट नहीं करता, राइट? तो आई होप आप सभी मेरे को सुन पा रहे हैं। यस सर, यस सर। देखिए एक्चुअली एसपीसी की अगर मैं बात करूं इसमें बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारी वेरिएबिलिटी रहती है। जब हम इस वेरिएबिलिटी की बात करते हैं ना सर, तो उसमें होता क्या है कि उसके अंदर जब हम वेरिएबिलिटी की बात करते हैं तो सर पूरा ग्रंथ है 1.1 आवर में इसको फिनिश करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है क्योंकि कैलकुलेशंस रहती हैं, लिमिट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सीपी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, पूरा मैथमेटिकल फंक्शन रहता है। बट अभी जैसा हम 1 आवर के प्रोग्राम में हैं तो सिर्फ कंटेंट वो कंसीडर किया मैंने कि आप लोगों को ए पॉइंट ऑफ व्यू की प्रोसेस में इजीली ग्रास्पिंग हो जाए, ठीक है। आपके साथ में इंटरव्यू कहीं फेस कर रहे हो तो वहां पे क्वेश्चंस आए उनको आप जल्दी से आंसर कर सको। तो शॉर्ट टर्म का मीनिंग है, शॉर्ट टर्म में जो मैक्सिमम मतलब जो मैंने आज तक अपने 17 इयर्स के कैरियर में सीखा मैन्युफैक्चरिंग में कि किस किस डाटा पैरामीटर को आप ले सकते हो, वो सारा हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। इन केस हो सकता है कि कुछ छूटा हो, बट सर इतना श्योर है कि इन पैरामीटर्स को भी आप लेके काम करेंगे ना एसपीसी के साथ में तो आपको डिजायर्ड आउटपुट रिजल्ट्स मिलते हैं। की पॉइंट्स के साथ में करेंगे, नेचुरल लॉज, ठीक है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस, जी शॉर्ट टर्म, जी लॉन्ग टर्म, ये सारा पढ़ना होता है। बट उस सारे को पढ़ने के लिए सर बेस प्री रिक्विजिट्स होती हैं कुछ, बट एज ए शॉर्ट टर्म की आपको भाई एक शॉर्ट टर्म में ग्लिम्स में कुछ सीखना है तो हमने वो सारा कंटेंट लिया था। मेरी साइड से आपके लिए ये था। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कहीं पे कोई भी क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्शंस हो तो आप पूछ सकते ताकि हम उसको आंसरेबल कर सके। बिकॉज ये कंसिडर कीजिए कि आपके लिए शॉर्ट टर्म में हमने एक फाइन डाटा तैयार करा है, शेयर किया है कि आप उसको क्विक ग्लिम्स में कैसे यूज कर सकते हैं। क्विक आपको एसपीसी को करना हो तो कैसे कर सकते हैं, आप डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसको समराइज कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अपने चार्ट्स को कैसे आप आउट लिमिट्स ला रहा है जा रहा, चार्ट्स को देख के समझ सकते हैं। आप किसी सप्लायर के पास से एसपीसी आ रही है, आप उसको कैसे ग्राफ्स कर सकते हैं कि उसने टेम्पर्ड डाटा तो नहीं दिया, आउटलायर्स की हेल्प से तो डाटा नहीं दिया, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं किया उसमें। ये सारे पॉइंट्स आप कंसीडर करेंगे ना क्विक वे में, यानी एसपीसी को एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना निचोड़ देना, सर निचोड़ है ये उसका। कंप्लीट एसपीसी के लिए सर 2 डेज का सेशन लगता है मिनिमम, क्योंकि उसके अंदर आपको पूरी सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करता है, बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू होते हैं। बट एज ए शॉर्ट टाइम इट्स आई होप कि मैंने बेस्ट देने की कोशिश करी है। तो हृदय सर आई रिक्वेस्टेड यू कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करें ताकि हम लोग डिस्कशन कर सके और जो कुछ जितने भी यहाँ गाइज हैं क्वेश्चन चल रहे हो माइंड में तो हम उनको आंसर कर सकें। हृदय सर सुन पा रहे हैं आप मेरे को? So yes, so first of all, of course, thank you so much. Indeed, we are quite, strongly agree with that. This session is really, of course, need at least minimum 2 days. But yes, as we see, right, even straight right of our today's participant, yes, most of the people they are already, joining the session with having around, I think most of the people they are quite, having experience. So yes, why actually we thought that most of the people, right, I think who have some certain queries, right, so it's better, right, to just take some queries, right, from the audience, and accordingly, of course, I will request you please, you just try to answer the question. So first, sir, I request. I seen in a chat box some questions, so I will clarify that one first. Then we will take fresh one, right? So please, okay. Please. First question is Mr. Krishnakant Rastogi. तो व्हाट इज स्टेबल प्रोसेस? सर ने पूछा कि स्टेबल प्रोसेस हम किसको बोलते हैं। सर देखिए एक क्लियर थिंग ये समझिए आप कि प्रोसेस अगर आपकी स्टेबल है, राइट, स्टेबिलिटी है, इट मींस कहीं ना कहीं वो झूठ बोल रही है। बिकॉज प्रोसेस कभी स्टेबल नहीं होती, वो हमेशा रैंडम चलती है। हम उसको स्टेबिलिटी तब बोलते हैं सर जब हमारा सीपीसीपीकी की वैल्यू मोर देन 1.67 हो। अगर मेरी ये वैल्यू अचीव हो रही है तो उस प्रोसेस को मैं स्टेबल प्रोसेस बोल सकता हूँ, राइट। ओके, सेकंड आई होप कि आपके स्टेबिलिटी का आंसर मैंने दे दिया है। आप इसमें सर पी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट आप सीपीसीपीके की वैल्यू कैलकुलेट करो, 1.67 से ज्यादा है तो आपकी प्रोसेस की
स्टेबल बोल सकते हैं। जी सॉल्ट की वैल्यू आपकी अगर मोर देन 3 आ रही है, आप बोल सकते हैं कि स्टेबल प्रोसेस है, राइट। सर सेकंड क्यूरी है कि व्हाट इज द सैंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल टेकन टाइम। सर देखिए, सैंपल फ्रीक्वेंसी आपके प्रोडक्शन साइज पे डिपेंड करती है। आपने अगर डिजाइन सीपी कर रहे हैं, यानी सीपी के कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मिनिमम कहा जाता है कि सर आपका 5 का सैंपल साइज होना चाहिए और 25 का सबसेट, यानी 125 का सैंपल साइज आपका मिनिमम होना चाहिए। कब लेना चाहिए सर? प्रोसेस के स्टार्ट में, कोई भी ब्रेक होता है उसके स्टार्ट में, कोई भी चेंज ओवर होता है उसके स्टार्ट में, ठीक है। प्रोसेस एंड हो रही है उससे जस्ट बिफोर, ताकि आप मैक्सिमम वेरिएशन कवर कर सकें। तो प्रोसेस का जो सैंपल फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टार्टअप, कोई भी आपका कट शॉर्ट हुआ उसमें, या आपका जहां वेरिएशन आता है मैक्सिमम स्टॉपेज के थ्रू, बिकॉज हमारा काम क्या होता है कि मैक्सिमम नेचुरल वेरिएशन को कवर्ड करना, बिकॉज ये प्रिडिक्टेबल होता है। बट जब ये असाइनेबल बनता है तो चेंज कर देता है कंप्लीट, यानी रिजेक्शन जनरेट करते हैं, जिसको ग्रास्प करना, एलिमिनेट करना बहुत टफ पड़ जाता है। इसलिए जब भी आपको फ्रीक्वेंसी सैंपल साइज लेना होता है तो वो मिनिमम 5 का और 25 सबसेट्स होंगे, यानी 125 का सैंपल साइज होना चाहिए, ठीक है। और वेरिएशन मैक्सिमम जहां आपके ग्रास्प हो, आपको वहां पे सैंपल्स लेने हैं, राइट। एक क्वेश्चन है सर, आई थिंक ओके, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है, दैट्स वन। तो ये मेरे को 2 क्वेश्चंस दिख रहे थे हृदय सर, जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं। अगर आपको कुछ समथिंग और न्यू क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो प्लीज लेट मी नो। I request all the participants to post. This is a really wonderful time right for you all. This is really a golden opportunity for you all. Whatever the questions you have, of course, you just raise your hand. Then I will request my control room to unmute the mic of yours, and you may directly, interact with our trainer. So, जिनके पास भी कोई भी सवाल हो, Mr. Gautam, I request control room to unmute the mic of Gautam, please. So, Mr. Gautam, yes, your mic has been already unmuted. You may raise your questions, please. You may talk to. Yes, sir. Yeah, good evening, sir. You had been well presented. It is a nice statistic process control which we can daily relate it with our productivity. Yes, sir. I want to just convey that how the Six Sigma is related to SPC. Means Six Sigma is related just to DMSA, which means define, measure, analyze, improve, and control. So how the productivity is being related to Six Sigma and SPC. So just you can relate the both of it and how the quality can be achieved through the quality. Yeah. Right, sir. Sir, Six Sigma ना, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि define, measure, that is a different aspect. और जो हम SPC में Six Sigma बोलते हैं ना, that is 6 multiplied by standard deviation. Okay? Mr. Gautam? Yes. Six Sigma strategy is a different thing, but when we say Six Sigma in SPC, it means 6 multiplied by standard deviation. Yani 3 multiplied by standard deviation in left side, 3 multiplied by standard deviation right side, centered and adjacent, right? Okay. So both aspects are the different. So don't merge each one, because Six Sigma strategies जो है वो एक big level का है, उसमें हम SPC को as a tool यूज करते हैं। बट जब हम SPC में Six Sigma की बात करते हैं, इट मीन्स सिंपल होता है कि सर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूं। इट मीन्स मैं अपनी प्रोसेस को 6 एरियाज में डिवाइड कर रहा हूं, ताकि मैं जो मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैं ये बताता हूँ, पिक्चराइज करता हूँ कि मेरा विद इन मीन के पास मैक्सिमम एरिया में कितना है, मीन से अवे यानी 2 प्लस में कितना है, तो उसको मैं Six Sigma यहाँ बोल रहा हूँ। जो आप Six Sigma बोल रहे हैं दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, वो स्ट्रेटजी है, वो एक आपका मतलब रेसिपी मेथड है, वो बड़े लेवल्स पे सॉल्व करता है। उसमें SPC को एज ए टूल यूज कर सकते हैं, राइट। बट जब मैं SPC की बात करता हूँ तो वो दैट इज ए 6 इज द फैक्टर और सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, आई होप आई विल क्लियर योर क्वेश्चन। Yeah. Yes. Okay, second question I seen in the chat box is that what is sample taken from store ready to dispatch? Okay, so ये क्वेश्चन है मिस्टर सचिन का। ओके, सचिन सर देखिए, डिपेंड करता है कि आप डिस्पैच कितना करने जा रहे हैं। अगर आप 100 पार्ट्स डिस्पैच कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 5 सैंपल्स लेने होंगे। हाँ, अब आपके पास में देखिए SPC मैनुअल क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर 5 पार्ट्स में आपको एक भी डिफेक्ट मिलता है तो आपको 100 का 100 क्वारंटाइन करना पड़ेगा, आप उसको नहीं बेच सकते हैं।
राइट। अगर आप 1000 का ले रहे हैं तो आपने वहां एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या बना रखा वो देखना पड़ेगा। यानी 5000 के लिए नॉर्मली 7 पार्ट्स का रहता है, मशीनिंग पार्ट्स है तो उसके लिए 13 पार्ट्स का रहता है। डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट रेंज क्या है। आप रबर पार्ट्स में डील कर रहे हैं, मास प्रोडक्शन पार्ट्स में डील कर रहे हैं, हो सकता है आपका बल्क पार्ट्स हो, मतलब बोल्ट्स नट हो, तो उसमें क्या है, आपको अगर 1000 का लॉट गया तो उसमें एटलीस्ट आपको 100 सैंपल साइज चेक करना पड़ेगा। इट्स वेरीड करेगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपके लिए क्या स्टैंडर्ड डिफाइन किया है। ओके सचिन। ओके, सेकंड क्वेश्चन जो चैट बॉक्स में है सर, कृष्णकांत रस्तोगी जी का है, रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। सर देखिए, सीपी जो मेरी प्रोसेस कैपेबिलिटी है और जो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन मैं कहां से लेकर आया हूं, जो मेरे सैंपल साइज में रिलेशन है, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू सीपी इज इक्वल टू ऑलवेज 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी सीपी इज इक्वल टू सीपी के -1, ये मेरा लेकर चलते हैं। तो मेरा बोलने का मीनिंग है सिंपल सा कि पॉपुलेशन में से मैंने सैंपल साइज लिया, सैंपल साइज में से मैं रेंज निकाल रहा हूँ, जो रेंज मैं डिफाइंड कर रही है मेरे स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो कोरिलेट कैसे करते हैं इसको पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन में से जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी उस स्टैंडर्ड डेविएशन के बिहाफ में मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज्यादा होगा इट मींस मेरी पॉपुलेशन उतनी वर्स्ट है, यानी उसके अंदर वेरिएशन बहुत ज्यादा है। जितना मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा उतनी मेरी पॉपुलेशन पे प्रिडिक्शन अच्छा है, इट मीन मेरा वेरिएशन जो पॉपुलेशन में कम है। ओके, आई होप कि आपके क्यूरी का आंसर मिल गया होगा आपको। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर के गहलोत का, कैन दिस टूल बी यूज्ड टू इम्प्रूव द प्रोसेस इवन इफ वी आर वर्किंग विद द जीरो क्वालिटी एरर? यस सर, एब्सोल्युटली। सर देखो, जीरो क्वालिटी एरर के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेस में जहां आपका वेरिएशन ज्यादा हो, मिनिमाइज मेजरमेंट की जरूरत हो, आप वहां पे इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ताकि डिफेक्ट से पहले आपको आपके प्रोसेस का बिहेवियर मालूम चल जाए। देखिए, जब प्रोसेस का बिहेवियर मालूम पड़ेगा तो आप उस पर क्या प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे। जब प्रिवेंशन करेंगे तो आपका सिंपल सा डिफेक्ट जीरो, जो आउटपुट है वो डिफेक्टिव नहीं होगा, तो डिफेक्ट रेशो कम होगी, तो सीधी सी बात है आप जीरो डिफेक्ट की तरफ ड्राइव करेंगे। राइट मिस्टर के गहलोत? सर एक मिस्टर परसुन है, उन्होंने लिखा है वी आर ऑलरेडी कैन वी इंप्रूव विद दिस? सर ऑलरेडी एट जीरो एरर। अच्छा सर, मेरे को आप सिंपल सा बताइए कि आपने बोला जीरो एरर पर हैं, आई एक्सेप्ट कि आप जीरो एरर पर हैं। आपने पिक्चर कैसे देखी सर जीरो एरर की? आपने पीपीएम के केस में देखी है जीरो एरर या परसेंटेज के केस में? देखो सर, परसेंटेज केस पुराना हो गया, पीपीएम पुराना हो गया। अब क्या है, हम जब जीरो एरर की बात करते हैं ना सर, जीरो एरर एक्चुअली एक सुपरफिशियल आपका सिग्निफिकेंस सिंबल होता है। उसमें होता क्या है जीरो एरर में, जब हम बोलते हैं ना कि जीरो एरर, इट मींस जब अगर मैं बात करूं पीपीएम की, पार्ट्स पर मिलियन की, 10 लाख पार्ट्स बनाते हैं 3.4 पीपीएम को आप एज ए मिनिमम, वो होता है आपका। ऐसे समझिए, आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में अगर आप अगले 365 साल गए और एक भी दिन लेट नहीं हुए, दैट मींस 3.44 पीपीएम है वो। तो सर उसके लिए आप किस जूमिंग करके देख रहे हो, उसको किस एक्स फैक्टर के साथ देख रहे हो, तब आप उसको जीरो एरर बोल सकते हैं। आप इसको यूज कर सकते हैं, आप अपना जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको बढ़ा दीजिए। आप अगर पीपीएम में देख रहे हो तो ना आप इसको बीपीएम में देखिए, मिलियन पार्ट्स पर मिलियन में देखिए, तो आपको फिगर निकल कर आएगी। सर हम क्या करते हैं, देखिए स्टैंडर्ड रूम में जब हम काम कर रहे हो तो माइक्रोस्कोप होते हैं, हमें कुछ क्लियर नहीं दिखता, हम 10x करते हैं, फिर 20x करते हैं, 100x करते हैं। तो हमारा सिंपल सा रीजन क्या होता है कि हम उसको देखने के लिए कि अगर नहीं नजर आ रही है तो ग्लासेस पे जूम करके देखते हैं कि हमें एग्जैक्ट डिफेक्ट फाइंड करना होता है। हाँ, इस टाइम आपने प्रोसेस में कराया, कांग्रेचुलेशंस, वेरी गुड कि आपने जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो एरर की बात कर रहे हैं। अगर जीरो एरर की बात कर रहे हैं सर अभी, ठीक है, जिस आप स्केल पे उसको मेजर कर रहे हैं वो जीरो एरर दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप स्केल को और बड़ा कर दीजिए ताकि इसमें आपको और क्लियर पिक्चर आए। आपने रिप्लाई करा, यू गॉट इट, ओके, थैंक यू सर। I hope Hriday-san, no more questions in chat box, so please you will. So any just a last minute post any questions, suppose last 1 or 2 questions we can take quickly. I know that especially this topic I could say it is completely customized, and I could say for an hour this is the right time, right? In a somewhere we have found that some people, they are starting from the basic foundations. What is it? What is the SPC?
and what's the element of SPC. I know that of course, for most of the people they are quite clear about that. So whoever are having certain challenges regarding the implementation, having knowledge is a very different thing. But apart from that, how you can implement that knowledge in your organization, that is completely a different. So obviously, the time of course you get to implement your knowledge and skills, that time you find several kinds of challenges. So that's why Trainer Wings actually without that, why not we could bring such kinds of sessions through which actually you can find out the various kinds of solutions or magnificent solution, I could say, through our experts, so that you could easily implement in your organization. So any questions? I request to please raise your hand. Otherwise, of course, we will just find the station today. So hopes, of course, we have already clarified. And thank you so much, Mr. Jundela-san. Of course, I know that of course the way you have delivered very crispy, and no doubt the session, as you said, it requires minimum 2 days. But the way you maintain the pace level, I could say, it was really amazing. The way you deliver, it is really showing that how much you are energetic, and you also make the people energized. This is basically the beauty of your session, your lecture. I really captivated a lot, Ralph, and we request you please be with us, and we are looking forward to have more session in a coming future as well. So on the behalf of Trainer Wings, we are really thankful, and we are quite saying thank you to you for your such a valuable session today. You answered various kinds of the questions today very practically. So thank you. We as a team, I could say, we are really thankful to you. Thank you, and thank you. Yeah. Thank you so much, team. It's my pleasure. Thank you, sir. Sure. So, ladies and gentlemen, I'm glad to just give you the brief about upcoming session here. Some people they were asking or dropping right in the text in the chat panel, I could say. Some people they are not getting frequent update regarding the sessions, upcoming session. So I will request my control room to please integrate those mail ID as well and try to keep them updated frequently. But apart from that, I request you please like our Facebook page so that you could get frequent updates regarding the upcoming session. Yes, soon we are also bringing one session on MSA, that is the measurement system analysis. I think this topic was also I think demanded by you. So obviously we are bringing the session very soon for you. Yes, 1 or 2 session is also very important, and the session is, I could say, for the HR people. Yes, most of the people they are also shown interest to join this topic from HR. So from HR we are bringing one session on compensation, bringing the stage. Apart from that, one session which is completely, I could say, really vital for the HR fraternity, I could say only. This is for entire, the team, and that is known as competency-based interviewing skill, right? Participated in the various kinds of interview panel. So obviously, this session will definitely be helpful for you all. Apart from that, of course, one session again we are bringing, that is IR regarding the industrial relation, and I hope so. This topic will also quite important and valuable, right, for each and every individual, rather on the HR people. So these are the topic actually I could say. Yes, I think one guy they were also requested in last session, that is regarding GD&T. Can you bring the session on GD&T? GD&T stand for, that is geometric dimension and solvents. So yes, soon we are also bringing this topic again, right, for GD&T. Geometric dimension and solvents, especially for the manufacturing guys. I hope this session will definitely diversify your knowledge and skills, and through that definitely you will make yourself ready for the upcoming future leaders. Apart from that, those who have joined right today in the session from and who belong to HR. So obviously one session we are also bringing for the compliance part, like the Factory Act. So this session is also very soon, of course, we are bringing. So I request you all please like and subscribe our YouTube channel. Through that, of course, you will also get the frequent update. Apart from that, some topic, of course, if you missed out just because of your pre-scheduled organizational meetings or any another assignment, so that whenever you will like and subscribe our channel, obviously our recorded video get uploaded and you may easily access and
brush up your knowledge through our such kinds of videos as well. So these are basically the updates from our side. Of course, Trainer Wings completely bringing free of cost session for you all. So I request you, please be in touch and keep honing your skills. We as a team, of course, this is basically our ideology to create a platform, right, to just make our surrounding with the fragrance of knowledge and skills. So thank you so much. Be in touch and be safe. This is basically we'll implore to you all, and keep spreading your knowledge and the skills in your surrounding. This is also our personal request to you all. So thank you so much. See you in the next training program. Thank you so much, Mr. Dharmendra Sean. Thank you so much, my dear all participants, and thank you so much entire team of Trainer Wings. Thank you so much. Jai Hind.